friends, good morning. How are you all? I hope you all are doing absolutely well. और नए साल की तैयारी चल रही है और नए साल में नए रिजोल्यूशंस और नई तरह से ज़िंदगी जीने का इरादा. So I wish you all the best and myself Deepak and I can be your friend, companion or wellness coach, whatever you want. I have transformed my life 7 years back, and since then I'm maintaining my weight and living a healthy lifestyle. And I help people to live a healthy lifestyle and transform their health. So इसी सिलसिले में मैं ये वीडियोस शेयर करता हूँ जिसमें वेट लॉस के बारे में और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आई कीप ऑन शेयरिंग. So today I am sharing the third most popular myth about weight loss, and that is eat less, move more. आपने ये बात सभी से, खासकर बुजुर्गों से हम सुनते रहते हैं कि वेट लॉस करने में क्या है, जस्ट कम खाओ और दौड़ो ज़्यादा. बट फ्रेंड्स, it's not as simple as that. So eat less and move more is absolutely a crap for most of the people. Yes, it's a crap. Or I'm going to share with you why it is a crap for most of the people, and you should never follow this approach if you want to lose weight. So people who are trying to follow this approach, they either they fail miserably in their weight loss, or after initial weight loss there will be a plateau and they won't lose further weight, or even if even then they just can't maintain it sustainably for in the long run. मतलब जो भी weight loss उन्होंने किया, they will bounce back very fast if they follow this approach. So let me share with you what is the loopholes in this approach. And this approach is actually over focused on calorie deficit. मतलब कि आप कम खाना खाएं और ज़्यादा मेहनत करें तो आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे and you will lose weight. But friends, it's not as simple as that it sounds. Why? Because वेट लॉस के विषय में पहली आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने शेयर किया. वेट लॉस, calorie deficit is a very important component of weight loss, but it is not the only component. There are a lot many other things: your hormonal imbalance, your lifestyle, your hydration, your nutrition. Lot of things are there for your weight loss. So number one and number two, जो move more की बात करते हैं जिससे आप calorie deficit में आ सकते हैं. So move more यानी exercise more. So actually एक्सरसाइजिंग के थ्रू आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर भी नहीं सकते. अगर आप ये सोचते भी हैं कि यू कैन लूज वेट ओनली बाय क्रिएटिंग ए कैलोरी डेफिसिट, then this tool is not effective because exercise burns very few calories. So why and what is the science behind that? You can know that by in my last video where I have shared that this जिसमें मैंने ये दोनों बातें शेयर की. आज मैं इस मिथ में और जो दो मुख्य बिंदु हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं शेयर करने वाला हूँ. नंबर वन, दिस अप्रोच कंप्लीटली इग्नोर्स द न्यूट्रिशन ऑफ द फूड एंड द डाइजेस्टिबिलिटी एंड जो फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में उसको ये कंप्लीटली इग्नोर करता है. नंबर वन. एंड नंबर टू, दिस अप्रोच consider food as a calorie. It completely ignores the importance of mindful eating. So I will share with you in this video what is this mindful eating, number one, and number two, why nutrition of the food is important. जो पहली बात मैंने की फूड की न्यूट्रिशन, देखिए फूड में बहुत न्यूट्रिशन होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होती है और प्रोटीन होती हैं एंड फैट, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स. सो ये जो अप्रोच है ईट लेस एंड मूव मोर, ये सारे फूड को एक थैली में डाल देता है. सब फूड बराबर है ऐसा नहीं है. आप कार्बोहाइड्रेट का यूज़ बॉडी में एनर्जी के लिए होता है, प्रोटीन का यूज़ मसल बिल्डिंग के लिए होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स का यूज़ बहुत कम मात्रा में बहुत सारे बाकी फंक्शंस के लिए होता है, एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स को बहुत सारे बाकी फंक्शंस के लिए होता है. तो ईट लेस जब बोलते हैं और आप खाने को कम कर देते हैं तो एक्चुअली यू आर कटिंग डाउन ऑन मेनी
इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन योर बॉडी, एंड इसका नतीजा ये होता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है, प्रोटीन का लॉस होता है, आपकी मसल का लॉस होता है, योर स्किन क्वालिटी, योर डाइजेशन, योर हार्मोनल फंक्शन सब में इम्बैलेंस हो सकता है एंड होता है। एंड सो ईट लेस वाली बात तो यहाँ पूरी तरह से आधार, इसका आधार ही टूट जाते हैं। इट हैज़ नो फाउंडेशन एंड यू शुड नेवर डू दिस। अगर आप करना भी चाहें तो यू शुड फोकस ऑन ईट लो कार्ब्स, हाई प्रोटीन, हाई न्यूट्रिएंट फूड। ईट लेस की जगह ऐसा बोलिए, ईट लो कार्ब, हाई प्रोटीन, हाई न्यूट्रिएंट फूड। यस, सो ईट लेस ये बिल्कुल काम नहीं करता। एंड देन मूव मोर को तो मैंने बता दिया। ईट लेस में एक सेकेंड पॉइंट और ये है कि ये माइंडफुल ईटिंग को कंप्लीटली इग्नोर करता है। माइंडफुल ईटिंग, व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग? सो योर फूड इज food. You celebrate food, you taste food, food changes your mood, and food से आपको खुशियाँ आती है, जब खुशियाँ आती है हम फूड खाते हैं। एंड फूड से बहुत फूड के रोल्स हैं लाइफ में। फूड इज़ नॉट जस्ट कैलोरी, सिर्फ कैलोरी बिल्कुल भी नहीं है। और फूड को इस तरह से खाना कि ये 50 कैलोरी खाया, ये 100 कैलोरी खाया, ये बिल्कुल नहीं है। और कैलोरी की काउंटिंग जो हम सोचते हैं वो इतनी आसान नहीं है। फूड में जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कॉर्न में एंड डिफरेंट आइटम्स हैं फूड में एक मात्रा में कैलोरी हो सकती है। केन एंड पोटैटो में एक मात्रा में कैलोरी हो सकती है, बट कैलोरी की एब्जॉर्प्शन जो होती है बॉडी में वो अलग होती है। कोको कोला ये कैन में जो एब्जॉर्प्शन होती है कैलोरी में वो बहुत ज़्यादा होती है, बट पोटैटो इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। सो yes, in moderation you should definitely have potato, nuts and फ्रेंच फ्राई में बहुत डिफरेंस है। सो आप फूड पे आपको न्यूट्रिशन पे फोकस करना है एंड फूड की पोर्शन साइज पे, कितनी मात्रा में आप फूड खाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ फुल फोकस ऑन फूड। आजकल की फैशन हो गई है टीवी देखते हुए, रीडिंग करते हुए या लोगों से गप करते हुए हम फूड खाते हैं, बट दैट इज़ नॉट द वे। इससे होता क्या है, आपके माइंड को पता नहीं चलता कि कितना खाना है, उसका ध्यान कहीं और है, और आप बातों ही बातों में और मल्टी टास्किंग के चक्कर में आप ज़्यादा खाते, ओवर ईटिंग कर लेते हो। यस, यू डू ओवर ईटिंग, दैट्स बिगेस्ट मीनस इन ओबेसिटी। So you should focus on mindful eating. What is mindful eating? Mindful eating is you eat with your 5 senses. आपके फूड का जो टच है, उसका टेक्सचर है, the way you look at the food, the way you smell the food, and फूड को बड़े प्यार से बनाना और फिर उसे वक्त निकाल कर एंजॉय करते हुए, उसे चेरिश करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए उसे खाना स्लोली। यू ईट वेरी स्लोली। When you eat slowly, आपका पेट भी जल्दी भर जाता है। You feel more satiated. Yes, you feel more satiated. When you eat slowly, with focus and with फूड को अपने नरिशमेंट के लिए खाना है, ना कि टंग के लिए। एंड एक्चुअली जो नरिशमेंट के फूड के लिए भी आप जो प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको टंग को भी वही अच्छा लगने लग जाता है। इट जस्ट ए हैबिट। आप टंग को पानी पूरी खाने की हैबिट डालेंगे तो उसे पानी पूरी की हैबिट पड़ जाती है, और टंग को यदि आप फ्रूट्स खाने की हैबिट डालेंगे तो उसे फ्रूट्स की हैबिट पड़ जाती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। दोनों ही में एंजॉयमेंट है, आपको चूज करना है आपको कौन सा एंजॉयमेंट चाहिए। यू वांट एंजॉयमेंट विथ हेल्थ, वाइटलिटी, पॉजिटिविटी एंड लॉट ऑफ जॉय एंड ब्लिसफुल एंड हैप्पी माइंड, और यू वांट टू एंजॉय जस्ट इम्पल्सिव डिजायर। दैट्स ऑन यू कि आप कैसे एंजॉय करना चाहते हैं। सो यस, मैंने ये 2 बातें बताई, माइंडफुल ईटिंग एंड द न्यूट्रिशन ऑफ द फूड। सो नेवर एवर फॉलो दिस अप्रोच, ईट लेस मूव मोर। बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसी बातें कहेंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो लोग गलत कह रहे हैं, वो अपनी टाइम के हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब मोटापा इतनी बुरी तरह से फैला हुआ नहीं था, जब हमारी लाइफस्टाइल अलग होती थी, हम खाना भी ऐसा खाते थे, हमारे गाँव में ऑर्गेनिक फूड रहता था, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड होता था। उस जमाने में ये बात कुछ हद तक सही थी। अब माइंडफुल ईटिंग हम ऐसे ही करते थे, उस समय ऐसे ही माइंडफुल ईटिंग करते थे जब हम लाइफ स्टाइल अलग हुआ करती थी।
सो आपको इन बातों पर ध्यान देना है, न कि ईट लेस एट मूव मोर पे। एंड यस, सो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं एवरी वीक और कपल ऑफ वीक्स आपके साथ ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करते रहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, एंड विथ माई वट एवर आई स्टडी एंड नॉलेज, and it can really help you transform your health. You can connect with me if you want a very powerful transformation in your life. You can get 100% guaranteed result, a very happy and healthy and transformed life with us. So thank you very much for watching my video, and I wish you all the best for your future success. Goodbye.